Hello, all my students. I hope you all are doing good. So, today, here we are to again discuss the additional case studies which ICI has uploaded on their website for paper 6C International Tax. So, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने केस स्टडी देख ली होगी. मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको केस स्टडी समझाना नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको बताना है कि केस स्टडी के अंदर आंसर्स किस तरीके से निकाले गए हैं. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. और मोर इम्पोर्टेंटली एमसीक्यू में आंसर कैसे निकाले गए, क्योंकि उसकी रीजनिंग आपके पास है नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, तो फिर भी आपको आईसीआई के सोल्यूशन के अंदर डिटेल आंसरिंग मिल जाएगी. सो आई होप you all will go through the case study first of all at your end, and then it makes sense to listen to this lecture and understand how the answer will go. So let me read the case study once again now for all of you. एक बार हम लोग सब लोग केस स्टडी पढ़ लेंगे क्लास के अंदर, और उसके बाद हम लोग इस केस स्टडी का डिस्कशन शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. केस स्टडी 7 सिक्स्थ केस स्टडी का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, एजे नेक्स्ट के चैनल पर. मिस्टर ईश्वर एंड इंडियन सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है, याद रखना, एजेड 55 ईयर्स. ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. Carries on the business of trading in garments in India. He has also set up a branch office in country X and country Y for trading in garments in those countries. तो अब तक क्या पता चला अपने को कि मिस्टर ईश्वर एक इंडिया का सिटीजन है, 55 इयर्स उनकी एज है, गारमेंट में ट्रेड करते हैं और उनके ब्रांचेस है कंट्री एक्स और कंट्री वाई में भी. कंट्री एक्स और कंट्री वाई दो फॉरेन कंट्रीज है, वहां पर भी उनके ब्रांचेस है. ठीक है, आगे बढ़े. Now he visits country X and country Y frequently for furtherance of his business. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो country X और country Y में frequently जाते रहते हैं. During previous year 1920 he has made 3 visits to country X from 13th May to 13th June. चलो ठीक है. From 18th August to 5th October and from 17th Jan to 4th Feb. तो 3 बार वो country X गए हैं. He visited country Y thrice from 3rd April to 24th April, from 4th July to 14th August and from 5th March to 20th March. Country Y भी वो 3 बार गए. The number of stays of his stay in country X and country Y during the past 10 years. पिछले 10 सालों में वो country X और country Y में कितने दिन रहते हैं उसका डेटा दिया गया है. ठीक है, इसका सबका कुछ यूज होगा इसलिए दिया है, ना तो फालतू में इतना डेटा नहीं देता इसे. वैसे कभी कभी फालतू डेटा भी देते हो लोग, ऐसा नहीं है. Now he has not visited any other country in the last 10 years. मतलब he has been in either in country X और country Y और India. ये तीन ही देशों में वो रहे हैं और किसी चौथे देश में वो गए नहीं है. He has a passion of writing and has written 2 literary books from which he earns royalty in country X. चलो ठीक है. He has purchased agricultural land in country X. In country Y, he has purchased a house which he has let out. He has invested in the shares of company incorporated in country Y. The following are the particulars of his income earned by him in India in country X, country Y for the previous year 1920. तो 3 देश में वो रहे हैं और इन 3 देशों में उन्होंने कितनी इनकम कमाई है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है. Income from business of trading in garments in India 34,30,000 in country X, 10,45,000 in country Y, 1,30,000 का लॉस. चलो ठीक है, तो ये गारमेंट ट्रेडिंग से ये 3 देशों से इतनी इनकम कमाई है, 2 जगह प्रॉफिट है, 1 जगह लॉस है. एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, ग्रॉस टैक्सेबल इन कंट्री एक्स 1,25,000. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई, ग्रॉस टैक्सेबल इन कंट्री वाई 40,000. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ए लिटरेरी बुक from country X, gross taxable in country X 4 lakh. Expenses incurred for earning royalty 40,000. Rent from house situated in country Y 1,80,000. Municipal tax in respect of above house not allowed as deduction in country Y 10,000. Business loss in country Y not eligible for set off against other incomes as per the law of that country. The rate of tax in country X and country Y are 20% and 30% respectively. चलो ठीक है, आगे का भाषण पढ़ते. मिस्टर ईश्वर यंगर ब्रदर, मतलब अभी किसका भाषण पढ़ रहे थे हम लोग, मिस्टर ईश्वर का. अभी उसके छोटे भाई के बारे में बात करते हैं. मिस्टर ईश्वर यंगर ब्रदर मिस्टर करण, एजेड 48 ईयर्स, अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री जेड. उसका भी कंट्री जेड में कुछ बिजनेस है. मिस्टर ईश्वर एल्डर सिस्टर, अब इसकी बड़ी बहन की बात करते हैं, मतलब ये
अपनी बहन से छोटा है और अपने ये करण भाई जो है उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये एल्डर सिस्टर के बारे में बहुत डेटा यहाँ पर दिया गया है। मिसेस राधा श्रीनिवास, एजेड 61 years, is married and settled in Kolkata, Calcutta, whatever it is. She is a Hindustani classical singer and composer who gives concerts in India and country W. तो राधा क्या है, राधा 61 years एजेड है, सीनियर सिटीजन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टैक्स कैलकुलेशन में। सेल्टेड इन कैलकट्टा मतलब इंडिया में ही रहती है, मतलब उसका नॉन रेसिडेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शी इज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर और कॉन्सर्ट्स वॉन्सर्ट्स करते रहते हैं वो इंडिया और कंट्री डब्ल्यू के अंदर। She visits W every year during the music season in October to participate in mega music concert held there. For the rest of the year, she gives concert in India. तो अक्टूबर में वो किधर जाते हैं, वो कंट्री डब्ल्यू में जाते हैं, उधर कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करते हैं, उधर से पैसा कमाते हैं। She earns 10 lakhs from concerts held in India and CWD 10,145 from concerts held in country W. CWD क्या है, ये कंट्री डब्ल्यू का डॉलर का करेंसी है, ठीक है। अभी ये कंट्री डब्ल्यू एक हाइपोथेटिकल कंट्री है, तो उसके लिए एक हाइपोथेटिकल करेंसी भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो अपन ने उसको CWD बना दिया, अपन ने नहीं मतलब ICI ने, ठीक है। नाउ टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री W इन 2019 अक्टूबर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हर इन दैट कंट्री वाज 2500। तो उसने जो भी पैसा कंट्री W में कमाई है 10,145, उसमें से $2,500 उसका पैसा कट गया इन द फॉर्म ऑफ TDS। She earns income of CUD 10,000 by way of royalty in respect of copyright of her musical composition in country U। चलो ठीक है, कंट्री यू में भी वो अपनी म्यूजिक का राइट्स बेचकर वहां से रॉयल्टी कमाती है। The royalty is paid to her every year on 25th of March after deduction of tax at the rate of 10%. In India, she has interest income of 4 lakh. इंडिया से क्या कमाती है, अभी वो कंट्री डब्ल्यू से कमाती है कॉन्सर्ट करके, कंट्री यू से कमाती है रॉयल्टी कमा के। कंट्री डब्ल्यू में क्या करती है, कॉन्सर्ट करती है। कंट्री यू में क्या करती है, रॉयल्टी कमाती है कॉन्सर्ट्स का CDVD बेचकर। और इंडिया में क्या कमाती है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स इन हर नेम एंड सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 25,000 रुपीज का कुछ इंटरेस्ट कमाती है सेविंग बैंक से। नाउ शी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 27,000 टू इंश्योर हर हेल्थ, खुद की हेल्थ के लिए 27,000 रुपए का मेडिक्लेम है। 30,000 का हेल्थ अपने हस्बैंड के लिए भी है जो 64 एज है जिसकी, और वो रेसिडेंट है। शी डिपॉजिट्स 1.5 लाख इन PPF, चलो ठीक है, ये सब देख लेंगे, चैप्टर 6 से में इसका इंपॉर्टेंस है। एंड 3 लाख इन 5 year फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हर सन मिस्टर रमेश, और बेटे के नाम पे 5 साल की FD बनाई है 3 लाख रुपए की, ठीक है। नाउ ये कुछ रेट्स दिए इन्होंने अलग अलग डेट्स पर, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 28 फेब और 31 मार्च 2020। यहाँ पर ये ICI से गलती हो गई है, यहाँ पर इनको 29 फेब देना चाहिए था, 28 फेब नहीं देना चाहिए था, ये उनसे गलती हो गई है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर इट हैज टू बी 29 फेब, ये मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। लास्ट डे ऑफ 2000 फरवरी 2020 क्या होता है, 29 फेब होता है ना, 28 फेब थोड़ी होता है यार। इतना उनको नहीं समझ में आता है क्या, खाली डेट बदल देते हो लोग। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग दैट इंडिया हैज, अब कुछ असम्पशन भी करना है। इंडिया हैज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री डब्ल्यू, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। चलो ठीक है, डब्ल्यू के साथ कोई DT नहीं है, एक्स के साथ कोई DT नहीं है, वाई के साथ कोई DT नहीं है। Assuming that India has a double taxation avoidance agreement with country Z in line with OECD model convention, Z के साथ DT है लेकिन कैसा वाला है, OECD जैसा है। U के साथ DT कैसा वाला है, UN जैसा है। तो W, X और Y के साथ DT इंडिया का नहीं है, Z के साथ OECD मॉडल कन्वेंशन जैसा DT है, U के साथ UN मॉडल कन्वेंशन जैसा DT है। India follows credit method for providing double taxation relief with respect to taxes paid in country Z and country U. अब इन दोनों देशों में अगर हम रिलीफ देंगे तो बायलैटरल रिलीफ मिलेगी, यूनिलैटरल रिलीफ नहीं मिलेगी। और इन तीन देशों में अगर इनकम कमाओगे, बोर्ड पे देखते रहो, डब्ल्यू एक्स और वाई में इनकम कमाओगे तो सेक्शन 191 में रिलीफ मिलेगी, 91। और कंट्री जेड और यू में कमाओगे तो सेक्शन 90 बायलैटरल रिलीफ। और बायलैटरल रिलीफ में भी कौन सी रिलीफ मिलेगी, क्रेडिट मेथड मिलेगा, एग्जेम्पशन मेथड नहीं मिलेगा। इफ यू रिमेंबर DTAA के अंदर बहुत तरीके से गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है, जैसे एग्जेम्पशन मेथड, पार्शियल एग्जेम्पशन मेथड, एग्जेम्पशन बाय प्रोग्रेशन, या तो फिर बाय क्रेडिट मेथड। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट मेथड फॉलो करना है इनकेस अगर आपको क्रेडिट वेडिट कंप्यूट करना है तो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो, I would request you all to see the question once again, read it 1 or 2 times, and then we will go through the multiple choice questions, ठीक है। ये आपकी केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी लेकिन धमाकेदार केस स्टडी है, ठीक है। आप लोग इसको पॉज कर दो, पॉज।
ठीक है। I hope you have started the video and now, and I hope you have read it for at least 1 or 2 times, at least 2 times, to have a grip on the situation. Situation पे grip आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 1, the first MCQ, the total income of Mr. Ishwar for AY 2021 is as follows। अब मिस्टर ईश्वर की टोटल इनकम ढूंढनी है, ठीक है। तो अब मिस्टर ईश्वर की टोटल इनकम ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जानना पड़ेगा मिस्टर ईश्वर की इनकम कंप्यूटेशन में। अब मिस्टर ईश्वर की इनकम कंप्यूटेशन क्या है, देखो। ये मिस्टर ईश्वर की इनकम कंप्यूटेशन है, देख लो बोर्ड पे बहुत अच्छे से। हाँ, एमसीक्यू में बहुत मेहनत करवाने वाले आपसे। अब मिस्टर ईश्वर क्या क्या कमाता है? मिस्टर ईश्वर सबसे पहले 34,30,000 रुपीज की इनकम इंडिया से कमाता है, तो वो कैलकुलेटर पे ले लो, कैलकुलेटर पे लो। 34,30,000, ठीक है। उसके बाद 10,45,000 रुपीज की इनकम कंट्री एक्स में कमाता है, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेटर पे ले लो। उसके बाद कंट्री वाई के अंदर उसको 1,30,000 का लॉस है, तो वो लेस कर दो, ठीक है, वो लेस कर दो। सर क्यों सर? वो तो कंट्री वाई में एलिजिबल नहीं है ना। कंट्री वाई में एलिजिबल नहीं है ना, इंडिया के अंदर टोटल इनकम ढूंढ रहे हो तो इंडिया में तो एलिजिबल है ना भाई, तो उसको लेस करना पड़ेगा। अगर इंडिया में एलिजिबल नहीं होता ना वो लॉस, तो फिर मैं उसको लेस नहीं करता। therefore 3430 प्लस 1045 माइनस 1,30,000, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड इनकम भी कमा रहा है बंदा, 1,25,000 रुपीज डिविडेंड इनकम ले लो कैलकुलेटर पे। मैं सबका जस्टिफिकेशन देने के लिए यहां पर आया हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर और 40,000 रुपए की डिविडेंड इनकम, सॉरी 1,25,000 एग्रीकल्चर इनकम है, कंट्री एक्स में कमाया। कंट्री एक्स में कमाया तो टैक्सेबल है, इंडिया में कमाता तो एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है। तो क्या 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 ऐड किया अब तक आपने? 34,30,000 प्लस 10,45,000, ठीक है। 34,30,000 प्लस 10,45,000, कैलकुलेटर पे करते जाओ मेरे साथ, माइनस 1,30,000 प्लस 1,25,000। फिर उसने कुछ डिविडेंड कमाया 40,000 का, वो भी ऐड करो, वो भी इनकम कमाया। फिर उसने 4 लाख रुपए की रॉयल्टी कमाई है, वो भी ऐड करो। लेकिन उस 4 लाख की रॉयल्टी कमाने के लिए उसने 40,000 का खर्चा किया, वो लेस करो, ठीक है। अब उसने कुछ हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम कमाई है, 1,80,000, 1,80,000 रुपीज की उसकी ग्रॉस इनकम है, उसमें से 10,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है उसने, ठीक है। अब कंट्री वाई में अलाउड नहीं है ना, तो जाने दो ना, भाड़ में जाए, अपन इंडिया के अंदर कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अलाउ। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ये कुछ पहली बार नहीं कर रहे हम लोग। देयरफॉर 1,80,000 माइनस 10,000 कितना होता है? 1,70,000 बराबर। अब 1,70,000 में से उसको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो उसका आंसर आएगा 1,19,000। 1,19,000 ऐड करो, बराबर। देखो मैं आप पूरा आंसर बता दे रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहो। ये 3430 ऐड करोगे, 1045 ऐड करोगे, ये माइनस करोगे, फिर ये ऐड करोगे, फिर ये ऐड करोगे, फिर ये ऐड करोगे, फिर 40,000 माइनस करोगे, फिर 1,80,000 माइनस 10,000 1,70,000, उसमें से 30% लेस करोगे तो 1,19,000 आ जाएगा। ये जो भी आंसर आएगा ना 49,89,000 आंसर आता है, ठीक है। इसका एमसीक्यू का रीजनिंग नहीं देगा आईसीआई, ये मैं दे रहा हूं इसलिए आपको, तो आप ढूंढते बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। 49,89,000 आपका आंसर आएगा। माइनस अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि वो रॉयल्टी कमा रहा है तो उसको 80 QQB का 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। लेस करो 3 लाख, कितना? 3 लाख रुपए 80 QQB लेस करो तो उसको आंसर आ जाएगा 46,89,000। और आंसर अभी देख लो आप क्या है, आंसर 46,89,000 ही होगा। आंसर ए है फर्स्ट का, और यहां पर देख लो फर्स्ट का आंसर 46,89,000 दिख रहा है। क्लियर है? पूरा जस्टिफिकेशन दिया हूं मैंने आपको। ये मिस्टर ईश्वर की क्या है? टोटल इनकम। आगे बढ़े, अब बात करते हैं आगे। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 91, 91 मतलब यूनिलैटरल रिलीफ for AY 2021, the double taxed income of Mr. Ishwar in respect of income earned in country X and country Y would be। तो अब आपको जो सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ मिलती है वो डबली टैक्स इनकम पे मिलती है। जो भी इनकम 2 बार टैक्स होती है
उसके ऊपर आपको या तो इंडिया का एवरेज रेट या तो फॉरेन में जो रेट पे टैक्स भरा था विच एवर इज लेस उस हिसाब से रिलीफ मिलती है। तो अभी अपने को इसकी डबली टैक्स इनकम ढूंढनी है। तो चलो कंट्री एक्स की डबली टैक्स इनकम ढूंढते हैं, फिर कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम ढूंढते हैं। चलिए कंट्री एक्स में कितना कमाया उसने, कंट्री एक्स में पहले 10,45,000 कैलकुलेटर पे लो, ये 2 बार टैक्स हो रहा है बराबर। और क्या कंट्री एक्स में कमाया, ये 1,25,000, ये भी 2 बार टैक्स हो रहा है बराबर, ये भी 2 बार टैक्स हो रहा है कंट्री एक्स में। और क्या कमाया उसने, और उसने ये कमाया, ये 4 लाख ऐड करो, ये भी 2 बार टैक्स हो रहा है, लेकिन उसमें से 40,000 लेस कर दो क्योंकि उसका डिडक्शन उसको मिल रहा है, तो वो 2 बार टैक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसमें से 3 लाख और लेस कर दो क्योंकि उसने 3 लाख रुपए का चैप्टर 6 में डिडक्शन ले लिया है, तो डबली टैक्स नहीं हो सकता है वो। देयरफॉर कंट्री एक्स का डबली टैक्स इनकम विल बी हाउ मच, 1045 प्लस 125, ठीक है, प्लस 4 लाख माइनस 40,000 माइनस 3 लाख, एंड द आंसर विल कम टू 12,30,000। 12,30,000 इज द कंट्री एक्स डबली टैक्स इनकम। अब कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम देखते हैं। ये तो नेगेटिव है, चलो उसको बाद में लेस करते हैं। ये कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम है 40,000 रुपीज। और क्या है कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम, यहां पर भी कुछ डबली टैक्स इनकम होती है, 1,80,000 माइनस 10 कितना होता है, 1,70,000, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,19,000 आता है, वो भी डबली टैक्स इनकम है, वो भी डबली टैक्स इनकम है। और माइनस 1,30,000, माइनस 1,30,000, तो कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम 29,000 और कंट्री एक्स की डबली टैक्स इनकम 12,30,000, and therefore the answer is D, D and D. You can check the answer over here. Answer is D, D, 12,30,000 and 29,000. मैं ज्यादा आंसर नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि आगे के आंसर्स रिवील हो जाएंगे, ठीक है, देख लो बराबर से। क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मिस्टर ईश्वर पे पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया इन्होंने, 3 पार्ट में, 3 एमसीक्यू में लगभग ये पूरा क्वेश्चन ही है, सिर्फ इसको डिटेल में लिखना नहीं है लेकिन आंसर तो पूरा ही निकालना है लगभग। तो चलो देखते हैं। द रिबेट अंडर सेक्शन 91 अवेलेबल टू मिस्टर ईश्वर फॉर AY 2021 इज एज फॉलोज। चलो देखते हैं। अब रिबेट 91 में ढूंढने के लिए सबसे पहले इंडिया का एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज रेट इन इंडिया। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए अपने को मिस्टर ईश्वर की टोटल इनकम ढूंढनी पड़ेगी। टोटल इनकम तो ऑलरेडी हमने ढूंढ ली है, कितनी है टोटल इनकम उसकी, 46,89,000। मिस्टर ईश्वर 55 ईयर्स का है, ये भी याद रखना। तो 46,89,000 पे पहले टैक्स निकालते, चलो निकालते 46,89,000 पे टैक्स, ठीक है, सब लोग निकालो मेरे साथ, तुम्हारे से पहले ही निकालूंगा मैं। वन 12,67,968 विल बिकम 970, ये है उसकी टोटल टैक्स। कैसे आया, 46,89,000 में से 10 लाख पहले लेस कर दो, तो पहले 36,89,000 पे 36,89,000 पे 30% ले लो, ठीक है, फिर उस पे 1,12,500 मार दो, फिर उस पे 4% सेस मार दो, तो 12,67,968 विल कम टू 970। डिनोमिनेटर में कितना है, 46,89,000, $12,67,970 divided by 46,89,000 into 100 will give me an average rate of 27.0413734 approximately, मतलब exactly अगर मैं देखने जाऊं तो ये मेरा एवरेज रेट है, ठीक है। अभी मेरे को रिबेट चाहिए, रिबेट 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 कैसे मिलेगा, सुनो अभी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंट्री एक्स में 20% है टैक्स, तो 20% कंपेयर विद 27%, तो कंट्री एक्स में 20% का रिबेट मिलेगा। कंट्री वाई में 30% है, कंट्री वाई में 30% है और इंडिया का एवरेज है 27 पॉइंट समथिंग है, तो कंट्री वाई के केस में 27 पॉइंट समथिंग वाला रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों देशों की डबली टैक्स इनकम अपने को ढूंढना है।
अब डबली टैक्स इनकम एक्चुअली अपन ने पहले ढूंढ ली है, लेकिन फिर भी एक बार और ढूंढने का है तो ढूंढ लो, ठीक है। दोनों देशों की डबली टैक्स इनकम अपन ने यहाँ पर ढूंढ ली है ना बेटा, 12,30,000 और 29,000। अरे ये ढूंढा था ना भाई अपन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो 12,30,000 पे तुमको कितना रिलीफ मिलेगा? 12,30,000 कंट्री एक्स में कमाया, कंट्री एक्स में 20% रेट है, तो 20% का रिबेट यहां मिल जाएगा। और 29,000 पे तुमको कितना रिलीफ मिलेगा? तुमको रिलीफ मिल जाएगा 27.0413,734। अब इन दोनों का अगर टोटल मारोगे तो देखो क्या आता है। चलो ट्राई करते टोटल मार के, ठीक है। मैं कर लेता हूं आपके सामने। 12,30,000 इंटू 0.2 विल कम टू 246। इसका आंसर आ जाएगा 2,46,000। 29,000 इंटू 27.0413,734 will come to into 100, sorry divide by 100. 29,000 into 27.0413,734 divide by 100, 78 लगभग 42। इन दोनों का टोटल मारो 2,46,000, इस पे ऐड करो तो आंसर आएगा 253,842। देख लो बराबर से, ले लो फोटो अगर नहीं समझ में आता है जिंदगी में। और आंसर इस 253,842, ये आंसर होना ही चाहिए इसमें डेफिनेटली मेरे हिसाब से 253,842 एंड द आंसर इज 253,842 एंड द आंसर इज पॉइंट नंबर ए। चेक कर लो, दिख रहा है? फोटो लेना ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन लगभग अगर देखो आप तो एक प्रॉपर कंप्यूटेशन क्वेश्चन ही थे। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एज पर इंडिया कंट्रीज एट DTAA, India countries at DTAA and India country UDTAA. Royalty, if any, arising to Mr. Karan and Miss Radha Srinivas in country Z and country U respectively would be: point number A, taxable only in India. Point number B, royalty arising to Mr. Karan may be taxed either in India or in country Z, or royalty arising to Miss Radha Srinivas may be taxed either in India or in country U. Royalty arising to Mr. Karan would be taxable only in India. Royalty arising to Ms. Radha Srinivas may be taxed either in India or in country U. Royalty arising to Ms. Radha Srinivas would be taxable only in India. Royalty arising to Ms. Karan may be taxed either in India or in countries है। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारा जो कंट्री Z और कंट्री U के साथ DTAA है वो कैसा है। तो कंट्री Z के साथ जो DTAA है वो है OECD मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से, और कंट्री U के साथ जो DTAA है वो है UN मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से। इसलिए अभी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि, मैं पहले ओरली बोल देता हूं, याद नहीं आएगा तो मैं दिखाता हूं कि OECD मॉडल कन्वेंशन में रॉयल्टी हमेशा रेसिडेंट कंट्री में ही टैक्स होती है, हमेशा OECD के हिसाब से। लेकिन UN मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से रॉयल्टी रेसिडेंट में भी टैक्स हो सकती है और सोर्स में भी टैक्स हो सकती है। मैं बताता हूं आपको। OECD के हिसाब से रॉयल्टी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंट ओनली। कितना बारीकी से जो पढ़ा है ना अपन ने वही काम आएगा देखो आज लाइफ में तुमको। बहुत बारीकी से पढ़ाए हुए ये सारी चीजें मैं तुमको। जाना आगे यार। अभी भी बहुत आगे हो। हाँ, आर्टिकल 12 रॉयल्टी, ये OECD है। रॉयल्टी शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट, दैट इज रेसिडेंट स्टेट।
बट यूएन मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से रॉयल्टी मे बी टैक्स इन दिस स्टेट, इट कैन ऑल्सो बी टैक्स्ड इन द सोर्स स्टेट प्रोवाइडेड द रेट ऑफ रॉयल्टी टैक्स शुड नॉट एक्सीड ए पर्टिकुलर परसेंटेज। ये बराबर से पहले देखो, ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी होगी, ये पॉइंट पर वो एमसीक्यू बना है। अब इसको पकड़ के क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बोला हूं मैंने सब कुछ। इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं है, चेक करो। इंटरेस्ट के लिए ओईसीडी और यूएन दोनों सेम है। ये देखो, इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ओईसीडी हो या यूएन हो, दोनों केस में रेसिडेंट कंट्री में भी टैक्स हो सकता है, सोर्स कंट्री में भी टैक्स होता है, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस। बट रॉयल्टी के लिए देखो कंडीशंस क्या है, शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट। अभी इसको पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही बारीक क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, अप्रीशिएट दिस क्वेश्चन। कंट्री सेट ओईसीडी, कंट्री यू यूएन, और क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन है दो लोगों के ऊपर। कौन है वो दो लोग? मिस्टर करण एंड मिस राधा श्रीवास्तव। अब मिस्टर करण किधर जा रहा है, ठीक है, चेक करो। मिस्टर करण कौन से देश में जाकर पैसा कमा रहा है? जेड में। जेड में कौन सा मॉडल कन्वेंशन है? जेड में कौन सा मॉडल कन्वेंशन है? यहां पर लिख रहा हूं मैं। मिस्टर करण कहां जाकर पैसा कमा रहा है? जेड में। आराम से, कोई खाई नहीं एग्जाम में भी आपको। जेड में ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन। और मिसेस राधा, वो कहां जाके पैसा कमा रही है? कोई खाई नहीं अपने को, यू में। कंट्री यू, यू में कौन सा मॉडल कन्वेंशन है? बोलिए। यूएन। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये जो कमा रहा है ना, ये इंडिया में ही टैक्स होगा, और ये जो कमा रही है ना, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना। एज पर इंडिया कंट्रीज एट डीटी डबल ए, इंडिया कंट्रीज एट डीटी डबल ए and India country UDTAA. Royalty if any arising to Mr. Karan. Mr. Karan कहाँ कमा रहा है? Z. And Miss Radha Srinivas in country Z and country U respectively would be taxable only in India. No. Royalty arising to Mr. Karan may be taxed either in India or in country Z. No. Karan जो कमा रहा है वो इंडिया में ही टैक्स होगा. Royalty arising to Mr. Karan would be taxable only in India as per the OECD model convention. Royalty arising to Miss Radha Srinivas may be taxed either in India or in country U. This is the correct answer and this has to be the correct answer. This is the logical reasoning of this particular question. I hope you all have understood. ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको मेरे लेक्चर्स बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमने बहुत डिटेल में बात की है, ठीक है। आर यू क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते। Let us suppose that as per the DTAA between India and country U, कंट्री यू के साथ DTAA है हमारा, है ना, जहां हम लोग यूएन मॉडल कन्वेंशन फॉलो करते हैं। चलो ठीक है। Let us suppose that as per the DTAA between India and country U, a particular income earned by Mrs. Radha Srinivas in country U may be taxed in country U. ठीक है, मिसेस राधा श्रीनिवास किधर रहती है? वो कलकत्ता में रहती है, सीनियर सिटीजन है, वो कुछ इनकम वहां कमा रही है, वो वहीं टैक्सेबल है, तो इंडिया को रिलीफ देना पड़ेगा ना। While computing her total income under the Income Tax Act, the said income should not be taken into income at all. गलत, बिकॉज इंडिया और कंट्री यू के बीच में DTAA है और हम लोग रिलीफ देंगे। अगर मिसेस राधा श्रीनिवासा वहां जाकर कुछ कमाती है तो हम रिलीफ देंगे, लेकिन कैसा रिलीफ देंगे? फुल रिलीफ नहीं, क्रेडिट बेसिस पर, क्योंकि ऊपर नोट में लिखा है कि वी फॉलो क्रेडिट मेथड। चेक करो, रिलीफ के लिए हम क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं, चेक करो। देयरफॉर क्रेडिट मेथड किसको बोलते हैं ये पढ़ के आपको पता चलना चाहिए। शुड नॉट बी टेकन इनटू इनकम एट ऑल, ये एग्जाम्पशन मेथड है, ये नहीं फॉलो होगा। should be taken into account. Thereafter, deduction is to be allowed from the tax payable in India on her total income. ये सही आंसर है। पहले इनकम में लो और फिर डिडक्शन दे दो जो भी उसने वहां भरी है।
may be taken into account in order to compute the total income on the remaining income. ये भी नहीं चलेगा, ये है exemption by progression. याद करो, ये मेथड नहीं चल रहा है यहाँ पर. मे बी टेकन इनटू अकाउंट. अब बी और डी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर शुड है, यहाँ पर मे है. इट शुड बी डन लाइक दिस ओनली, द वे इट इज गिवन इन पॉइंट नंबर बी. चेक कर लो, आंसर इज बी. वेट अ सेकेंड, चेक कर लो. क्लियर है? आई होप यू ऑल हैव गॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल 5 MCQs. क्लियर? तो अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. दो ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसमें से पहला वाला बहुत ही सिंपल है, सेकंड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा भी बता देगा, पहला वाला उसमें कुछ नहीं है. डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ईश्वर फॉर AY 2021. ठीक है, तो बहुत ही चिंदी है यार. तो मिस्टर ईश्वर का पैराग्राफ कौन सा है? पहला पैराग्राफ है. तो देखो मिस्टर ईश्वर इंडिया में कितने दिन रहा. ठीक है, पहले ये पता लगाना पड़ेगा वो रेसिडेंट है क्या. एक बार ये पता चल जाएगा, अगर वो रेसिडेंट है तो फिर हम लोग पता चल लगाएंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है. अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है, पहले ही पता चलता है कि वो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर आगे जाके मतलब नहीं. अब देखो मिस्टर ईश्वर इंडिया से बाहर 6 बार गया है, 3 बार कंट्री एक्स, 3 बार कंट्री वाई. तो कितनी बार कंट्री एक्स गया है, कितनी बार कंट्री वाई गया है, वो निकालो. वो 365 से लेस कर दो. ठीक है, तो वही किया इन्होंने सोल्यूशन के अंदर, कोई बहुत महान चीज नहीं है, बहुत ही चिंदी सा सोल्यूशन है इसका. ये देखो, तो पहले उसने कंट्री एक्स में वो 32 डेज के लिए पहले गया, फिर 49 डेज के लिए, फिर 90 डेज के लिए, फिर कंट्री वाई में 22 दिन के लिए गया, 42 डेज के लिए गया, 16 डेज के लिए गया. ये सब डेटा किधर से आ रहा है? ये सब डेटा आ रहा है इधर से, वो सब कैलकुलेट करते बैठो आराम से. 32 डेज कैसे आया सर? ये गया ना 13 में से 13 जून. 13 में से 13 जून कितना होता है? 32 डेज होता है. कैसे सर? 13 में से 13 जून, मई के कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए. 13 में से 31 में 19 दिन, और 19 प्लस 13 जून. ठीक है, तो कितना हो गया? 32 डेज. इस तरीके से कैलकुलेट किया उन्होंने, और कुछ नहीं, कोई महान चीज नहीं है. तो कंट्री एक्स में 100 दिन रहा है, कंट्री वाई में 80 दिन रहा है. टोटल साल में 366 दिन है इस साल, 366. तो उसमें से 186 डेज वो इंडिया में रहा है, देयरफॉर वो रेसिडेंट तो ठहराया गया है. यस और नो यार, वो रेसिडेंट बन गया. अब उसको पता लगाना है कि अपने को वो ऑर्डिनरी है या नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग आगे का डेटा पढ़ेंगे कि कंट्री एक्स में इतने साल रहा, कंट्री वाई में इतने साल रहा, देयरफॉर साल में 365 दिन होते. उसमें से कंट्री एक्स में इतने दिन रहा, कंट्री वाई में इतने दिन रहा, तो इंडिया में कितने दिन रहा पहले वो पता लगाओ. तो 365 में से ये दोनों माइनस करते जाने का, माइनस करते जाने का, माइनस करते जाने का, एक टेबल बना लेने का. ठीक है, देयरफॉर 18 19 1 2 3 4 5 6 7 साल का ही डेटा लिया अपन ने. तो ये कंट्री एक्स का डेटा है, कंट्री वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई. ठीक है, यहाँ पर आईसीआई ने चालाकी की कि 15-16 के अंदर 366 दिन लिया है. चलो ये दिमाग लगाया कम से कम. तो अब पहले साल में यहाँ पर 190 दिन, क्योंकि इतने दिन एक्स रहा, इतने दिन वाई रहा, इतने दिन एक्स रहा, इतने दिन वाई रहा है, तो बैलेंस नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में था. क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोलता है कि वो कंट्री एक्स और कंट्री वाई को छोड़कर और किसी तीसरे देश में कभी गया ही नहीं है. देयरफॉर देखो बहुत ही क्लियर है यार, ये 7 साल का डेटा आता है 1303, और ये हर साल में लगभग वो 182 डेज या उससे ज्यादा ही रह रहा है. Therefore, easily you can say that he is a resident plus ordinary resident in the current year. You can check the answer. He is definitely a resident plus ordinary resident. But the way you present an answer, that matters. That matters a lot. इसलिए आपको जितनी केस स्टडीज हो सकी है देख के जाओ. पास्ट एग्जाम्स की भी केस स्टडी का कंपाइलेशन जो मैंने आपको दिया हूं, अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो जाओ www.ajnext.com, वहां जाओ. ajnext.com पे जाना, ajnextonline.com पे मत जाना, ajnext.com. उधर डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड सेक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल के अंदर आपको ये सारी चीजें जरूर मिल जाएगी. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा एकदम, सबको आना चाहिए इसमें मार्क्स. हाँ, अब इसका पार्ट 2 अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन. अब कंप्यूटेशन है और क्या. Compute the total income and tax liability of Ms. Radha Srinivas for AY 2021 and determine the foreign tax credit available to her. अब यही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है पेपर. यहां तक तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है, 15 मार्क बहुत इजी होते हैं, एमसीक्यू मोर और लेस आसान होते हैं अगर ढंग से दिमाग लगाए तो. और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत इजी होता है, दूसरा वाला थोड़ा ट्रिकी होता है. बट कौन बोल रहा है आपको 10 में से 10 लाओ? जितना आता है लिखो, 10 में से अगर इसमें 5 भी आ जाता है तो अपना काम खत्म हो जाएगा, काफी हो जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है उसमें. 10 में से अगर 5 भी आ जाता है तो बहुत है, लेकिन अपनी कोशिश है हम 10 में से 10 लाएंगे, ट्राई तो करेंगे. तो चलो, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राधा श्रीनिवास फॉर AY 2021.
तो उसके लिए अभी उसकी इनकम देखनी पड़ेगी, क्या क्या इनकम कमाई है उसने। चलो देखते हैं और फिर उसका कंप्यूटेशन करते हैं। ये सबसे पहले वो सीनियर सिटीजन है तो टैक्स कैलकुलेशन में जरा ध्यान देना, ठीक है। अब उसने क्या क्या कमाई है, उसने 10 लाख रुपया इंडिया में कॉन्सर्ट से कमाई है, ठीक है। उसके बाद उसने 10,145 रुपए कंट्री डब्ल्यू में कॉन्सर्ट से कमाई, बराबर। उसके बाद उसने वहां पर कोई $2,500 का वो टैक्स दिए। उसके बाद उसने 10,000 रुपया रॉयल्टी के थ्रू कमाई है कंट्री यू में अपनी राइट्स बेचकर, ठीक है। ये तीसरी इनकम है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इंडिया में कुछ वो इंटरेस्ट कमाई है 4 लाख रुपए एफडी से और 25,000 रुपया सेविंग बैंक से, और उसके बाद उसने कुछ खर्चे किए, ठीक है। अब अपने को उसकी टोटल इनकम ढूंढना है, टैक्स ढूंढना है, सब ढूंढना है, ठीक है। चलो कंप्यूटेशन करते हैं उसका। मैं डायरेक्टली बुक में से ही दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन में से ही आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं पूरा सोल्यूशन बोर्ड पे लिखते नहीं बैठूंगा, ऑब्वियसली बेवकूफी हो जाएगी। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस राधा श्रीनिवास फॉर AY 2020। इंडिया के कॉन्सर्ट से उसने कितना कमाई है, 10 लाख रुपया कमाई, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी कंट्री यू से उसको रॉयल्टी मिली है। अब ध्यान से सुनना, सबर करना, जरा बहुत ज्यादा सबर करना अभी, ठीक है। रियल टेस्ट स्टार्ट्स हियर। कंट्री यू से उसको रॉयल्टी मिली है, कितनी रॉयल्टी मिली है, 10,000, ठीक है। अब वो रॉयल्टी उसने कभी कमाई है, ठीक है, कुछ मार्च वार्च में कमाई है, ठीक है। लेकिन ये डॉलर है ना, उसको रुपीस में कन्वर्ट करने का, रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा, गौर से सुन लो बेटा। अगर कोई इनकम फॉरेन करेंसी में होती है ना, तो उसको अगर आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है ना, तो उस इनकम को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रूल 115 है इन द एनेक्शर ऑफ योर टेक्स्ट बुक और योर स्टडी मटेरियल। तो अब इस एनेक्शर से आपको पता लगाना पड़ेगा किस दिन का आपको टीटीबीआर लेना है। एग्जाम के अंदर तो वो लोग ने बहुत सारा टीटीबीआर आपको दिया है, देखो अलग अलग डेट का, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, अक्टूबर, 29 फेब होना चाहिए और 31 मार्च। अब मैं इस $10,000 को कन्वर्ट करने के लिए किस दिन का रेट लूं, तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा ये $10,000 क्या चीज है, ये रॉयल्टी है। और फिर उस हिसाब से आपको इस एनेक्चर में आके पता लगाना पड़ेगा रॉयल्टी किधर फिट होती है। सैलरी में तो फिट नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में तो फिट नहीं होती है। हाँ, यहां फिट हो जाएगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी नॉट बीइंग रेफर्ड इन क्लॉज डी में रेफर्ड नहीं है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो रॉयल्टी या तो पीजीबीपी इनकम बन सकती है या तो आईएफओएस। देयरफॉर इसका कन्वर्जन रेट विल बी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी। देयरफॉर लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी क्या है, लास्ट डे पर क्या रेट चल रहा है, लास्ट डे पर 31 मार्च को कंट्री यू का रेट चल रहा है 80 रुपीज, और उसी हिसाब से देखो यहां पर कन्वर्जन किया है $10,000 into 80 being conversion rate as on 31 March 2020 रूल 115। अरे आर यू क्लियर, इस पे भी क्वेश्चन किया है अपन ने क्लास के अंदर कि अगर इनकम फॉरेन करेंसी में है तो उसको आपको रूल 115 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद उसने कॉन्सर्ट से कुछ पैसा कमाया कंट्री यू से, ठीक है। उसमें 10,145 कमाया है, उसका भी 31 मार्च का आपको डेटा लेना पड़ेगा कंट्री यू की करेंसी के हिसाब से। कंट्री यू का 31 मार्च का डेटा क्या है, 69 है, क्योंकि ये भी उसी केस में जाता है, जिस केस में ये जाता है ये भी उसी केस में जाएगा। 7,05,000 ये उसकी टोटल इनकम है। उसके बाद उसने एफडी से 4 लाख कमाया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एफडी से 4,25,000, सेविंग बैंक से कमाया 4 लाख प्लस 25,000, 4,25,000, 29,25,005। हम लोग इसको कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते, हम लोग कभी भी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं, ये चीज याद रखना, डोंट राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम, ओके। बढ़ू आगे, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को, पागल लोग पढ़ाई करो अच्छे से। उसके बाद उसने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, बेटे के नाम पे एफडी लिया है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। बेटे जाकर एटीसी चेक करना, खुद के नाम पे लेने का रहता है, बेटे बेटे के नाम पे लोगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद 80D में उसने 57,000 रुपीज का खर्चा किया है। 57,000 कैसे हुआ सर, 27,000 खुद पे, 30,000 हस्बैंड पे, तो दोनों का मिलाकर फैमिली होती ना, हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलाकर 50,000 मिलेगा, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं होती तो 25,000 ही मिलता, बराबर। और फिर उसको 80TTB के अंदर 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, जो सीनियर सिटीजन को मिलता है एफडी और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर। कुछ याद आ रहा है। देयरफॉर ये सब करने के बाद उसका जो भी इनकम आएगी वो आएगी 26,26,75,005, राउंड ऑफ टू 010। उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, अभी 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन है, 3 लाख, चेक कर लेना कैलकुलेटर पे, टैक्स कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ अब, क्योंकि आपके सामने ही है।
3 लाख बेसिक एग्जामेशन बराबर। उसके बाद 2 लाख रुपए के ऊपर आपको कुछ 5% टैक्स लगेगा, और फिर 5 लाख के ऊपर 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। तो उस हिसाब से 6,37,003 आपका टैक्स आएगा। डिवाइड बाय 26,75,010। तो ये आ जाता है अपना एवरेज इनकम टैक्स का रेट। अब यहां तक आप सोल्यूशन देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे का पार्ट भी बहुत अच्छा है। ना आगे बढ़ते, अब ना इसको डबल टैक्स हो रहा है यार, क्यों? देखो, कंट्री यू में पैसा कमाइए, उधर टैक्स भरिए, कंट्री डब्ल्यू में पैसा कमाइए, उधर भी टैक्स भरिए। कितना टैक्स भरिए? देखो, कंट्री डब्ल्यू में कुछ $2,500 का टैक्स भरिए, और कंट्री यू में कुछ 10% टैक्स, मतलब $1,000 का टैक्स भरिए ना उसने। डबल टैक्स हो रहा है ना यार। अब देखो, उसको रिलीफ देना पड़ेगा। अब कंट्री डब्ल्यू में जो उसने टैक्स भरी है ना, उसके ऊपर अपन उसको सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ देंगे। और कंट्री यू में जो उसने टैक्स भरी है ना, उस पर हम लोग उसको यूनिलैटरल रिलीफ नहीं बल्कि बायोलैटरल रिलीफ देंगे, क्योंकि कंट्री यू के साथ हमारा डीटी डबल है। तो देखते हैं, अभी वो भी बहुत आसान है, कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। चलो देख लेते। कंट्री डब्ल्यू के साथ हमारा डीटी डबल ए नहीं है, ठीक है। अब रिलीफ कितना मिलेगा उसको, सुनो। टैक्स कवर्ड अंडर इंडिया कंट्री यू डीटी डबल ए, तो वहां पर सेक्शन 90 के हिसाब से, कंट्री डब्ल्यू के लिए सेक्शन 91 के हिसाब से। अब कंट्री यू के अंदर डबल टैक्स इनकम कितनी है उसकी? कंट्री यू के अंदर डबल टैक्स इनकम 8 लाख है। इंडिया का एवरेज रेट कितना है? 23.813, ठीक है। तो यहां पर उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, सुनो। 8 लाख। अब ये डिडक्शन जो है ना, ये सेक्शन 90 का रिलीफ है ना, ये कैसे मिल रहा है मालूम? बताता हूँ, वो भी मैं आपको, वो भी बताता हूँ आपको। सेक्शन 90 का रिलीफ मिल रहा है रूल 128 के हिसाब से, जो आपको बताता है कि एफटीसी का डिडक्शन आपको कैसे मिलता है। ये देखिए, और कितना मिलेगा। The credit shall be lower of the tax payable under the act and the foreign tax paid on such income. जो भी लेस होगा वो उतना ही मिलेगा। और उसको भी कन्वर्ट करने के तरीके, द क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ करेंसी और पेमेंट ऑफ टैक्स एट टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट एट द बाय ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड। तो अगर उसने अक्टूबर में भरी है, तो 30 सितंबर के रेट पर डॉलर को क्या करना पड़ेगा? रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना। रूल 115 किसका कन्वर्जन बताता है? इनकम का। रूल 128 किसका बताता है? ये बताता है टैक्स के कन्वर्जन का। अब बराबर से जरा शांति से सुनना। हाँ, ये सब छोड़ो, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या लिखा है, ठीक है, ये सब जाने दो। आंसर कैसे आया? 8 लाख पे अब उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, रिलीफ? 8 लाख पे इंडिया के हिसाब से टैक्स, या तो बाहर जो उसने टैक्स भरा है, कितना भरा है बाहर टैक्स? $1,000 भरा है। $1,000 कैसे आया सर? बताता हूँ। कंट्री यू के अंदर $10,000 कमाया, उसमें से 10% टैक्स दे दिया, ठीक है, तो $1,000 हुआ ना। तो अब कंपेयर कैसे करने का?
ये डबल 2 बार टैक्स हो रहा है, इस पर इंडियन रेट और फॉरेन रेट। $1000 का टैक्स भरा है बाहर। अब ये कब भरा है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। कभी भरा था ये $1000 का टैक्स? मार्च में भरा था। अगर मार्च में भरा था तो तुमको फेब का रेट में लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आता है तुमको? अभी एफटीसी के अंदर मैंने तुमको बताया, अगर मार्च में भरा था तो कौन से डेट का रेट लेने का? फेब का। अक्टूबर में भरा था तो सितंबर का। तो ये मार्च में भरा था तो फेब का रेट लेने का। फेब का रेट कितना है? 78 इंटू 1000 एज पर रूल 128। देयरफॉर जो भी लेस है वो 78 यहाँ पर लेस है। सिमिलरली सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ कैसे मिलेगा? वो तो वैसे ही मिलेगा जैसे अपन ने ऊपर अभी मिस्टर ईश्वर के लिए कंप्यूट किया था। 7,05,000 रुपीज की इनकम है, डबली टैक्स इनकम है, ठीक है। उस पर 23%। या तो बाहर कितना टैक्स भरा? $2,500 भरा है, ठीक है। उसका भी कन्वर्जन वैसी हुई। अब वहां पर अक्टूबर में भरा है, CWD अक्टूबर में भरा है, तो सितंबर 30 का रेट लिया है, चेक करो, और उस हिसाब से कंप्यूटेशन किया है। तो इट्स ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ टू टेक द रिलीफ एज पर रूल 128। रूल 128 बहुत सारी बातें बताता है। आप बराबर से उसका लेक्चर देखो, यूट्यूब पे डाला हूं मैंने, इसलिए बोला 10 बार उसको देखो, एक बार देखने से नहीं होगा, इसलिए यूट्यूब पे डाल दिया वो लेक्चर मैंने। तो दिस इज व्हाट दिस ब्यूटीफुल केस स्टडी इज ऑल अबाउट। जरूर देख कर जाना, जरूर देख के जाना। लॉट ऑफ नॉलेज इट गिव्स यू यार, बहुत नॉलेज देता है। डीटी के अंदर भी काम आ सकता है। आई होप दिस वाज ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू ऑल। आई होप दिस वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। वन मोर थिंग, आईसीआई ने आरटीपी भी रिलीज कर दिया है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वो भी देखना चाहते हो तो आप अभी देख सकते हो, ठीक है। वी वर वेटिंग दैट फॉर दैट सिंस लॉन्ग। So thank you very much. I'll be coming up with the remaining lectures also soon. Take care, all of you. I hope you have enjoyed the lecture. I hope you all have understood each and every point. In case you have not understood anything, you can message on 8080324444 on Telegram channel or on WhatsApp. Both are the same numbers. Or you can ask in the comment box below. And I want your reviews in the comment box below. That how was your experience learning direct tax and international tax from me? And how was your experience of understanding this beautiful case study in this session? Thank you very much, all of you. God bless you all. Take care.